Under simplification, we further have three subtopics. The first subtopic was construction of reduced grammar. Right? In last lecture, we have discussed it with two numerical examples. Right? Construction of reduced grammar. So next, second topic is elimination of null productions. The second topic is elimination of null productions. So first of all, you need to know about the category of null productions. So first of all, definition: any production which is of the form of A goes to null or B goes to null, or it can be written as A goes to epsilon or B goes to epsilon. In some books, instead of null, it will be written as epsilon. Okay, so all the production which is of the form of A goes to null or A goes to epsilon, any variable approaches to null symbol, that production is called as nullable production. Am I clear? That production is called as nullable production. Clear hai? So this is the definition for null production. So let's begin with the conversion. How to eliminate null variables? So first example is consider a grammar whose productions are S goes to small a capital S slash capital A capital B, A goes to null, सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा ऊपर से, B goes to क्या null, लिखा? D goes to B. क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा? नो सर, नो सर, नो सर. अब क्लियर है? हाँ जी सर. यस सर. चलो, so this production is given to you and you need to convert this into, So repeat this example, we please. have to eliminate the null variables. So first of all, we have step number one. So this elimination consists of two steps. Step number one says that first of all, you have to identify nullable variables. You have to identify nullable productions, right? एक मिनट में लाइट बंद कर दूं, यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन पड़ रही है थोड़ी सी, वेट कीजिए. So step number one कहता है elimination of nullable variables, or you can say that identification of null productions. So as I already told you in definition, all the production whose right side consists of null variables, those productions are called null productions. ठीक है? So here we have A goes to null number one and B goes to null number two. So these are the two productions whose right side consists of null variables. So it will be eliminated in step number one. So you just need to identify the null productions. ठीक है? तो ये वाली जो हमारी productions हैं, ये null productions हैं, तो ये आपकी पहले स्टेप के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगी. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. आगे चलें. स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू क्या कहता है?
you have to bifurcate your original productions. Bifurcation कैसे करनी है आपको? So first of all, you need to write your original production. That is, your original production is S goes to AS. So this is your original production, comma, you need to divide it into two parts. So number one, S goes to small a, एक पार्ट हो गया. नंबर टू, S goes to S. So एक वेरिएबल सेम वेरिएबल के ऊपर ही जा रहा है तो वो प्रोडक्शन काम में नहीं आती है. दैट इज S इज अप्रोचेस टू S, तो इसका कोई काम नहीं होता है. दैट इज व्हाई मैं इसको नहीं लिखूंगा. ठीक है, तो योर ओरिजिनल प्रोडक्शन दैट इज S goes to small a S, it will be now written as two productions, your original production and its bifurcation. सर रिपीट करियो एक मिनट. स्टेप 2. नंबर 2 स्टेप क्या कहता है? यू हैव टू बाइफरकेट योर ओरिजिनल प्रोडक्शंस इनटू टू पार्ट्स. तो आपके पास जितनी भी आपकी प्रोडक्शंस गिवन होंगी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इंस्टेड ऑफ नल प्रोडक्शंस, क्योंकि नल प्रोडक्शंस आपकी पहले स्टेप के अंदर ही छूट गई हैं. ठीक है, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया हुआ है. राइट, सो हियर यू हैव S goes to small a capital S, your original production, and S goes to small a. S goes to small a, एक इसकी बाइफरकेशन वाला पार्ट है. S goes to S दूसरा बाइफरकेशन वाला पार्ट है. लेकिन एक वेरिएबल अपने आप पे ही जा रहा है तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा, एलिमिनेट कर दिया. राइट, उसके बाद अगली प्रोडक्शन है S goes to AB. So S goes to AB, your original production, then bifurcation. S goes to capital A, S goes to capital B. ठीक है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया इसको. S goes to A, S goes to B, and the last production is D goes to B. So D goes to B, your original production. Now you have these 6 productions which are free from nullable variables. ठीक है, तो आपकी जो फाइनल 6 प्रोडक्शंस आई हैं आपके पास, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जिसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास नल वेरिएबल हो या अपसाइलन हो. क्लियर है? एग्जांपल क्लियर है बेटा? यस सर. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल. Yes, sir. नो डाउट्स? No, sir. वेरी गुड. सो नेक्स्ट Sir- एग्जांपल इज, सर एस से जब एस पे हम जा रहे हैं तो लूपिंग के लिए तो सर वो यूज होगा ना, तो हम सर उसको नेग्लेक्ट कैसे कैसे कर सकते बेटा हैं? एक वेरिएबल जो है एक के ऊपर ही जा रहा है, बिकॉज एक्स एस इज फर्दर, एस गोज टू एस है और एस इज फर्दर इंप्लाइज टू ए बी. ए भी नल है, बी भी नल है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एस नल हो गया. इसलिए मैं एस गोज टू एस नहीं लिख रहा हूं. समझ आया? ओके सर, ठीक है सर. ठीक है, तो कभी भी आपके पास एक वेरिएबल जो है वो अपने आप पे ही जा रहा है तो उसको आपको नहीं लिखना है बाइफरकेशन में, ये याद रखना. नेक्स्ट एग्जांपल इज, बेटा नोट्स अपने बना रहे हो जो मैं पढ़ाता हूं आपको साथ साथ, क्या नहीं बनाते हो? बनाता हूँ सर. हेलो, बना रहा हूँ सर. वेरी गुड. जो बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको पेपर्स में डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, अगली एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि हमारे पास है, चलिए ये एग्जांपल करते हैं, एलिमिनेट अपसाइलन प्रोडक्शंस. तो एग्जांपल नंबर सेकंड है एलिमिनेट अपसाइलन प्रोडक्शंस. अपसाइलन मींस नल प्रोडक्शंस. इवन क्या है आपके पास? S goes to small a slash xb slash aya, x goes to capital Y slash epsilon
y goes to small b x. So this is given to you. Okay. So how many total productions are given to you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So you have total 7 productions, and what you have to do? You just need to eliminate x goes to epsilon. This is a null production. So you have to eliminate this. One more production, x. Here y is dependent upon x. Y is dependent upon x, and x is null. It means y is also null. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको x को और y को दोनों को एलिमिनेट करना है. So let's begin with step number 1. So step number 1 says that identification of nullable variables. So again you need to start with step number 1, which says that identification of nullable variables, or you can also say that construction of grammar without nullable variables. So identification of nullable variables. So here you need to identify x goes to epsilon, right? So this one is first nullable variable, and the second one is because y is dependent upon x and x is ultimately null. So these are the two productions which will be eliminated in step number 1. Am I clear? Right? So in step number 1, you will have to eliminate x whose right side is epsilon and y goes to epsilon. So these two productions will be eliminated in step number 1. So next, step 2. यहाँ तक clear है सबको? Clear, sir. Clear. Better respond me with yes or no if you are clear with the concept. Reply with yes. If you have some doubts, ask me. Okay. Okay, sir. So step number 2. Step number 2 is for bifurcation. Okay. So I will start with the original production, that is S goes to A, your original production, right? Slash X goes to A original production, then XB again your original production, and AYA your original production, right? Next, when this X approaches to null, because we have, when this X approaches to null, you are left with only B, right? When this X approaches to null, you are left with B, right? When this Y approaches to null, you are left with A. Am I clear? You just need to put Yes. the value of X and Y in your original production. So number 1, this is your original. Number 2, original. Number 3, original. After that, I have replaced this X with null and you are left with B. Now for this, if the value of Y leads to null in step number 1, you are left with double A, right? After that, X Sir, goes sir, to triple A नहीं Y, आएगा. your original production. Hmm. X goes to Y, your original production, and the value of Y goes to B. So here, Y will be replaced with small b. Last but not the least, Y goes to B. So these are your final productions which are free from nullable variables. Am I clear? Sir, repeat कर दीजिए एक बार.
तो हमने क्या करा है स्टेप नंबर 2 के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write your original productions. You need to write these 3 productions as such. S goes to small a, X goes to XB, S goes to small a y, capital Y small a. After that, put the value of X to null. So you are left with S goes to small b only. If the value of Y is equals to null, you are left with S goes to double A. So I have written double A over here. Done. Then X goes to Y, your original production, and but here the Y, the value of Y is B. So that is why I will write X goes to small b and Y goes to small b, your original production. Am I clear? क्लियर है बेटा? ये एग्जांपल कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन है ना? हाँ जी बेटा, x इज एप्सिलॉन। एंड अगर x एप्सिलॉन है मींस के x आपका नल है, तो y इज डिपेंडेंट अपॉन x। हाँ जी ठीक है ना? तो अल्टीमेटली हमारा जो y है वो भी क्या हो गया? नल हो गया। सर फिर बी कैसे आ गया? वो वाई बी आ रहा है, वो पहला बी आ रहा है। बेटा ये देखो ना, यहाँ पे दो चीजें नहीं है। हाँ जी यहाँ पे x जो है वो y पे जा रहा है, तो ये मैंने लिख दी ओरिजिनल प्रोडक्शन x गोज टू y। हाँ जी उसके बाद y की वैल्यू क्या है? b, तो वो भी तो इसी के साथ आएगी, हाँ जी क्योंकि x गोज टू y है और y की दूसरी वैल्यू क्या है? b। तो x गोज टू y, यहाँ पे मैंने y को रिप्लेस कर दिया b के साथ, तो वो क्या हो गया? x गोज टू b। ठीक है? सर आपने रिप्लेस नहीं किया, आपने x की दो वैल्यूज निकाल दी ना, फिर वो y और b दोनों ही हो गई उसकी। क्या हुआ? आपने कहा ना कि x को रिप्लेस किया है, पर वो तो फिर दो ही वैल्यूज होगी ना, y/b, दो वैल्यूज होगी ना x की। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बेटा वो डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा y की, यहाँ पे x है, x की कितनी वैल्यूज है? 2। x की जगह पे क्या आ जाएगा? y। तो y गोज टू y, उसका भी फायदा नहीं है, मैंने आपको बताया कि सेम वेरिएबल सेम के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है? दूसरी वैल्यू क्या है? y अप्रोचेस टू नल, तो उसको तो हमने पहले स्टेप में एलिमिनेट कर दिया है। समझ आया? यस सर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया? x गोज टू y है, तो y की वैल्यू क्या है? एक b, तो वहां पे मैंने वैल्यू रिप्लेस करी ना उसकी, तो मेरे पास Yes. दो इक्वेशंस आ गई, x गोज टू y और x गोज टू स्मॉल b। यस सर। ठीक है? यस सर। एक और एग्जांपल देख लो। So next example is simplify the following grammar by removing nullable productions. So S goes to small a, capital A, small b. A goes to small a, capital A, small b. A goes to epsilon. ठीक है? So स्टेप 1 के अंदर क्या है आपके पास? स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या है? By seeing the given production, you have only single nullable production. So A goes to epsilon will be eliminated in step number 1. Am I clear? Yes sir. Yes, sir. Step number 2. Bifurcation. So S goes to small a, capital A, small b, your original production, right? When the value of A approaches to epsilon, you are left with small a, small b. क्लियर है? जब यहाँ पे a नल हो जाएगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल a, स्मॉल b। उसके बाद दूसरी a goes to small a, capital A, small b, original production. When a approaches to null, you are left with ab.
So these are final 4 productions without nullable variables. Clear है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप मेरे को करके बताइए, पोल के पिछले अंदर मैं रिफ्लेक्ट करता हूं उसको, आपने सर मेरे को पिछले बताना है एग्जांपल में काउंट। सर ठीक है। ठीक है, तो मैं पोल का क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कर रहा हूं आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? So you have to eliminate null variables. Instructions are S goes to small a, capital B. S goes to B, capital B. A goes to A B. A goes to null. B goes to B, capital A. B goes to A slash A. So find out the count. ये आपका पोल का क्वेश्चन है। लीजिए मैंने लॉन्च कर दिए, इसको कीजिए जरा। देखो बताइए कि आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ नलेबल वेरिएबल्स काउंट कितना आएगा। सर क्वेश्चन हेलो 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 हाँ जी बताओ बेटा, कोई डाउट है? सर वो विजुअल नहीं सर, सर वो विजुअल नहीं था। क्या हुआ? बहुत बड़ा है।
Only 10 seconds. Hurry up. तो थैंक यू जितने स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। ले So we have 24 students along with us who have answered 10, right? तो अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन देखना जरा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, by seeing the given productions, step number 1, step number 1, A leads to epsilon. This is your null production, and here B goes to A. It means B is ultimately null also. So step number 1, you have to eliminate these two productions, right? In step number 2, these two productions will be eliminated. So after that, फिर B S कैसे goes to small a, capital B, your original production, right? When B leads to null, you are left with small a, capital A. When this B leads to null, you are left with small a, capital A. When A leads to null, you are left with A, B. When this A leads to null, you are left with small a, small b. When both the variables a, b leads to null, you are left with A, right? So next, this is completed. After that, S goes to B, B, right? So this is your original production. When B leads to null, you are left with S goes to small b. सर B कैसे एप्सिलॉन आपने लिखा है? B कैसे एप्सिलॉन लिखा है? बेटा ये देखो ना, यहाँ पे है हमारे पास B goes to A है, अच्छा, यहाँ पे A नल है और B जो है उसकी डिपेंडेबिलिटी किसके ऊपर है? A के ऊपर। तो B भी क्या हो गया? नल हो गया ना? ओके ओके सर, ठीक। समझ आ गया? हाँ जी सर। अगर फिर किसी की राइट हैंड साइड के ऊपर वो वाला सेम वेरिएबल है अकेला और उसकी वैल्यू नल है, तो वो वाला वेरिएबल भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? नल। जैसे कि यहाँ पे था, A की वैल्यू नल है, बट हियर B is dependent upon A, but the value of A is equals to null. It means B is also null. null. Clear है? यस सर। So these two productions are completed. After that, A goes to small a, capital B, your original production. Then when the value of B approaches to null, you are left with this A. ठीक है? तो ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी तीनों कंप्लीट हो गई, इसको हमने लिखना नहीं है। उसके बाद B की प्रोडक्शंस देखते हैं। B goes to B, capital A, original production, and B goes to, when the value of A leads to null, you are left with small b. Then B goes to capital A, original production. B goes to small a, original production. Now count the entire productions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So your answer is final. 12. You have 12 productions. Am I clear? Yes, नहीं समझ लगी सर। बेटा क्या नहीं समझ आया? सर ये कैसे हो रहा है सारा प्रोसेस? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ एग्जांपल्स ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ?
हाँ जी सर वो थोड़ी बहुत फेर ही पा लग गई यार बेटा सर देखो वही तो करी है मैंने, उसी का कॉन्सेप्ट यूज करा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि आपकी नल प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये सारी प्रोडक्शन हैं ये जो आपके पास गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्शन हैं जो ओरिजिनली फॉर्म के अंदर आपको पास गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा A goes to null, एक ये प्रोडक्शन है जिसको एलिमिनेट करूंगा स्टेप 1 के अंदर। दूसरी B जो है वो A के ऊपर जा रहा है, अल्टीमेटली A की वैल्यू क्या है, नल है। इसका मतलब B भी क्या हो गया, नल हो गया। तो नल हो स्टेप 1 ने आपको क्या दिया, A और B जो है आपके अपसाइलन पे जा रहे हैं, which will be eliminated in step number 1। जो अपन यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर इतना क्लियर। आगे चलिए। हाँ जी ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆ, ओरिजिनल प्रोडक्शंस लिखी ਦੀਆਂ ਆ। सो मेरी ओरिजिनल प्रोडक्शन की हैगी आ S goes to स्मॉल a कैपिटल B। है क्लियर है? हाँ जी। अब पहले जब A की वैल्यू नल हो जाएगी, क्योंकि नल क्या है, A goes to एप्सिलॉन है ना, हाँ जी तो जब A नल हो गया तेरे को की आएगा, ए बी। कैपिटल A B आ गया, स्मॉल हाँ a जी। कैपिटल B आ गया। हाँ जी ठीक है, जब B नल हो गया, क्योंकि दोनों नल हैं, जब B नल हो गया तब क्या आएगा, ए। वेरी गुड, स्मॉल a कैपिटल A। जब दोनों नल हो गए तब क्या आएगा, स्मॉल ए। वेरी गुड, ये तो क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है, S goes to small b capital B, your original production। हाँ जी। When the value of B approaches to null, you are left with S goes to B। ठीक सर। ठीक है, हाँ जी। समझ आया कि हमें कहीं जा रहे हैं यहाँ? नहीं सर आउंदी आ। चलो नेक्स्ट, A goes to small a capital B original। उसके बाद when the value of B approaches to null, here you are left with A। ठीक है, ओके। उसके बाद A goes to एप्सिलॉन तो हमने लिखना नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी फर्स्ट स्टेप के अंदर एलिमिनेट हो गई थी ना। हाँ जी। देन B goes to small b capital A original, when the value of A approaches to null, B goes to स्मॉल b। बी। शाबाश। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, B goes to कैपिटल A ओरिजिनल, B goes to स्मॉल a ओरिजिनल, क्योंकि B goes to अगर A यहाँ पे लिख दूंगा तो वो नल हो जाएगा ना। तो हाँ अब जी। इसको काउंट कर लो, तो ये आपके पास जो काउंट है वो आ रहा है 12 का। समझ आ गया? अब ਸਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਆ ਉਹ ਸਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ केड़ा बेटा, ਐਂਡ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ B goes to A ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ओरिजिनल प्रोडक्शन है, ਜਦੋਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਨਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ, ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੋਲ A ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ S goes to small a। ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਮੋਲ A ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕੈਪੀਟਲ A ਸਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੋਣਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੈਪੀਟਲ A ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ B, ਜਦੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਲ ਆ ਉਦੋਂ ਬਚਿਆ ਦੇਖੋ S goes to small a ਕੈਪੀਟਲ A। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਆ, ਜਦੋਂ A ਨਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। A B। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਲ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਸਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਨਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ? ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਨਲ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆ B = ਆ B A ਵਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਐਪਸਿਲਨ ਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ B ਆ ਗਿਆ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਸਿਲਨ ਹੀ, ਸਮਾਲ b ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਨਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ B goes to ਆ ਗਿਆ ਨਾ, Small b ਆ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ B goes to B, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਰ B goes to A ਔਰ A ਆ ਸਮਾਲ A ਔਰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਐਪਸਿਲਨ। ਸਰ ਐਪਸਿਲਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ ਫਿਰ ਸਮਾਲ A ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ
नहीं हाँ जी। बेटा ओरिजिनल प्रोडक्शन ते लिखनी है ना, ਤੁਹਾਡੀ ओरिजिनल प्रोडक्शन ਦਾ दोनों। ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ओरिजिनल प्रोडक्शन लिखनी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ b goes to null, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਸਰ। this is your original production, वो तो लिखनी है। क्लियर है? ठीक सर। so next concept is third number, elimination of unit production। elimination of third topic under simplification, elimination of unit production। so any production which is of the form of S goes to A goes to B, B goes to C, and so on. It means whenever one non-terminal approaches to another non-terminal, that production is called as unit production। ठीक है? और you can also say it as chainable productions। नॉन टर्मिनल को और क्या बोला जाता है? वेरिएबल। whenever a variable leads to another variable। ठीक है? जैसे मैंने एक बात है, मैंने क्लास के अंदर जोबन को बोला कि जोबन ये वाली जो इंफॉर्मेशन है क्लास में पास ऑन कर दे। जोबन ने तनवीर को बताई, तनवीर ने सुमित को बता दिया, सुमित ने आगे साहिल को बता दिया, साहिल ने आगे। मींस के देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेन। समझ आई बात? यस सर। तो इस चेन को भी हमने क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्लियर है? तो यस जहां सर। से आपकी चेन बनती है उसको आपने रिमूव करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज एलिमिनेट chainable variables। let capital G be a grammar whose productions are let capital G be a grammar whose productions are S goes to A, B capital, A goes to small a, B goes to capital C slash small b, capital C goes to capital D, B goes to capital E, and E goes to A। So these are the productions which are given to you। Clear है? So step number 1, so here step number 1 says that identification of chainable variables। identification of chainable variables की वो वाले variables को आपने आइडेंटिफाई करना है जो कि चेन बना रहे हैं। so first of all you have to construct w's, w of s। तो जितने आपके पास variables हैं that much amount of w's are there, right? the w's are equivalent to the amount of variables। so here you have variable s, a, b, c, d and e, 1 2 3 4 5 and 6। so 6 consecutive w of s, w of a, w of b, w of c and so on। it will be there up to 6 number, right? so first of all w of s is equals to s। ठीक है? तो एक सेट के अंदर वो वाला वेरिएबल आएगा, अब खुद आएगा, प्लस वो जहां तक चेन बना रहा है वो आएगा। तो हेयर s जो है उसके अंदर क्या है? s goes to ab, but ab is not going somewhere else। मेरे पास कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जहां पे ab कहीं और जा रहा हो। तो दैट इज व्हाई हियर आई हैव रिटन s ओनली। क्लियर है? आफ्टर दैट w of a,
here a only because a is going to small a, तो a भी किसी के साथ चेन नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, w of a is equals to a वेरिएबल। शुरू से बता रहा हूं कि जोन से भी वेरिएबल का आपने w फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write that variable in that w. Second, you have to include all the other variables which are making chain. Am I clear? यस सर। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले b के अंदर b आया। अब जो b है वो किसके साथ चेन बना रहा है, सी कैपिटल B. C के साथ, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ गया, सी भी आ गया। नेक्स्ट, सी किसके साथ चेन बना रहा है, बी डी के साथ, तो कैपिटल डी भी आ गया। डी किसके साथ चेन बना रहा है, ई के साथ, तो ई भी आ गया। सो डब्ल्यू ऑफ बी के अंदर कितने वेरिएबल्स आ गए, टोटल 4। समझ सर आ ई गया भी बना, सर ई भी बना रहा है स्मॉल ए के साथ। बेटा, देखो ना यहाँ पे कैपिटल बी है, हाँ जी, कैपिटल बी लीड्स टू कैपिटल सी, हाँ जी। सी लीड्स टू डी, डी लीड्स टू ई, तो बी से लेकर ई तक चेन बन रही है, वो सारे वेरिएबल्स आ गए इसके अंदर। समझ आ गया? ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ छोटा ਡਿਆ। नहीं आना बेटा, Business स्मॉल ए नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल्स लिखने हैं, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद W ऑफ C क्या आएगा, बताइए फटाफट। W of ई सर डी, हाँ जी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, नहीं सर, कैपिटल पहले D, सी है। फिर सर डी ਜਿਹੜਾ ई ना। कैपिटल E, बस ये दो एलिमेंट्स आएंगे। हाँ जी, पर सी भी आएगा ना सर? क्या ਜਿਹੜਾ तनवीर? ई ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ आ। सी। वेरी गुड, C भी आएगा। मैंने आपको बोला है वो ओरिजिनल वेरिएबल जरूर लिखना है जो जिसको आप कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, C D E। नेक्स्ट, W ऑफ D, where you are having D, E. Last but not the least, W of E. So here you have only E. स्टेप नंबर 1 आपका खत्म हो गया। इसके अंदर हमने क्या कर लिया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ चेन बना रहा है, राइट? Am I clear? यस सर। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवली प्रोडक्शंस फाइंड आउट करनी है जिसका आंसर है सिंगल, ठीक है। अब किस किस का आंसर सिंगल है, पहले सबसे पहले हमारे पास जो चेन नहीं बना रहे, चेन नहीं देखनी है। एक तो है S गोज टू कैपिटल A कैपिटल B, ठीक है, मींस S गोज टू AB बट AB इज नॉट गोइंग समवेयर एल्स, तो ये वाली प्रोडक्शन आपकी सिंगल प्रोडक्शन है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑल द टर्मिनल प्रोडक्शंस। टर्मिनल प्रोडक्शंस होती हैं जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर खाली टर्मिनल्स हों। टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हो, ठीक है। तो उनको देखते हैं। A गोज टू स्मॉल a, एक प्रोडक्शन, कैपिटल B Hello. गोज टू स्मॉल b, दूसरी प्रोडक्शन, E गोज टू Hello, sir. स्मॉल जी। सर ई में जो आपके तो इक्वल टू ई दिए हैं, तो ई का सर मतलब ए के साथ जा रहा है ना। बेटा E कहाँ पे एक के साथ, वो तो स्मॉल है ना, कैपिटल के अंदर नहीं जा रहा है ना, हमें कैपिटल देखना है। यहाँ पे आपको सारे Yes, sir. कैपिटल वेरिएबल्स ही लिखे हुए हैं, स्मॉल वाला कोई भी नहीं लिखा, ध्यान से देखिए। तो E लीड्स टू स्मॉल a, you will not write small a over here। समझ आ गया? ओके सर। उसके बाद अच्छा। क्या करा है, स्टेप नंबर 2 के अंदर करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write those productions whose answer is single। So S goes to capital A, capital B is a single production because AB is not going to take you somewhere else. That is why this production is single production. Done. यस सर। Next,
After that, you will have to write those production whose right side contains only terminals. So A goes to small a, B goes to small b, E goes to small a. Okay, now I'm going to break the chain. ठीक है, so सबसे लास्ट के ऊपर क्या था, E goes to A. अब E किसके साथ चेन बना रहा था, D के साथ. तो अगर E goes to A है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, D goes to A आ गया, ये वाली चेन टूट गई. यस सर, डी गोस टू ए। ठीक है, अब D जो है वो किसके साथ चेन बना रहा है, E के साथ. अगर C goes to D है, D की वैल्यू क्या आई है मेरे पास यहाँ पे A, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C goes to A. यस सर। ये भी चेन टूट गई. उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलिए, C किसके साथ चेन बना रहा था, B बी के के साथ. साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, B goes to small Small b. a. Now हेलो these are the हेलो production. सर, हाँ जी, सर डी गोस टू ए होगा, D goes to, बेटा यहाँ पे क्या है, D ये goes कैसे to होगा E है सर? ना, फर्स्ट कैपिटल D goes to यस कैपिटल सर, E है. E की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल a, उसको इसके अंदर पुट करो. तो आपके पास क्या आ गया, D goes to A. सिमिलरली D Yes, किसके sir. साथ चेन बना रहा था, कैपिटल D C के साथ. तो यहाँ पे D की वैल्यू को रिप्लेस ठीक कर है, दिया yes, sir. स्मॉल a के साथ. तो क्या बन गया, C goes to A. सिमिलरली B goes to A. समझ आ गया. तो अब मेरे को देखकर बताइए, ये वाली जो आपकी फाइनल प्रोडक्शंस आई है, इसके अंदर चेन है, नो। ठीक है. तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2. अगर आपको पेपर में बोला जाता है एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द गिवन ग्रामर, तो आपका आंसर यहीं तक है. ठीक है, अगर आपको पेपर में बोला जाता है कि एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन एंड आल्सो रिड्यूस्ड इट, एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन एंड आल्सो रिड्यूस्ड इट, तो रिडक्शन के अंदर स्टेप नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, S goes to A B, A goes to small a, B goes to small b, B goes to small b and B goes to small a. तो बाकी सारी प्रोडक्शंस आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि S goes to AB ये आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शन है, एंड A goes to A, B goes to B. मींस कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर सकते हो आप, S goes to AB. ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 3 है. ये आपने सर तब जी- करना है जब आपको पेपर में बोला जाएगा कि आल्सो रिड्यूस इट, आल्सो रिमूव यूजलेस प्रोडक्शंस फ्रॉम इट. ठीक है, तो तब ये वाली आपकी फाइनल 4 प्रोडक्शन आ जाएंगी. अगर पेपर में आपको सिर्फ यही हेलो, बोला गया है कि हेलो सर। एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन, तो यहाँ तक आपका फिनिश है. हेलो, हाँ जी, तो बोलो बेटा बोलो. गोस टू ए बी गोस टू ए सर, क्या, बी गोस टू ए सर, दो एक कैसे होगा? B goes to A कैसे आया बेटा, जो लिखा हुआ है उसी को तो लिख रहा हूं मैं. बी गोस टू ए, यस ये आपका गिवन तो है बेटा, B goes to small a, ये B goes to small b है ना. तो यहाँ पे क्या था, B leads to C, C की वैल्यू यहाँ पे A पुट करी थी, तो उसके बाद आपके पास B goes to A आया नहीं था, वही लिखा मैंने. बेटा प्रोडक्शंस देखिए अपनी ध्यान से. यहाँ पे B goes to A कैसे आया था, क्योंकि B जो था वो C के ऊपर डिपेंडेंट था, और C की वैल्यू क्या थी, स्मॉल a. अल्टीमेटली B भी क्या हो गया, स्मॉल a. समझ आ गया, ओके क्लियर है. बेटा क्लियर है कि दोबारा बताऊं, हेलो. सर स्टेप 3 एक बार और बता दीजिए। बेटा स्टेप 3 आप छोड़िए, कंफ्यूज हो रहे हो, रहने दीजिए. ये तब करना है आपको जब आपको पेपर में बोला जाएगा
कि एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शंस एंड यूजलेस प्रोडक्शंस आल्सो। तो ये आपकी यूजलेस प्रोडक्शंस हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जब इसका फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बताया था यूजलेस प्रोडक्शंस क्या होती हैं, जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग को राइज नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आपकी इस एग्जांपल में s गोस टू कैपिटल A कैपिटल B है। अगर आपने कोई स्ट्रिंग बनानी है तो A की वैल्यू को रिप्लेस करोगे और B की वैल्यू को रिप्लेस करोगे, दैट इज आपकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, स्मॉल ab, ठीक है, या फिर वो बनेगी स्मॉल a, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पे AB है। इसका मतलब क्या है, A और B ही पार्ट ले रहे हैं स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, बाकी ना तो C, D और E ये तीनों के तीनों यूजलेस वेरिएबल्स हैं, ये एलिमिनेट हो जाएंगे स्टेप 3 के अंदर। ठीक है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो स्टेप 3 को छोड़ दीजिए, स्टेप 2 तक ये क्वेश्चन खत्म है। यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? यूजलेस क्यों नहीं है? सर ई यूजलेस है कि नहीं? Am I clear or no? सर एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, yes or no? ठीक है सर, ठीक है। अगली एग्जांपल जो आप लोग करोगे, एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। अगेन ये पोल का क्वेश्चन है। S goes to A slash double B, S goes to capital A slash double B, A goes to capital B slash small b, B goes to S slash small a. Okay, eliminate the unit production. Eliminate the unit production. चलो बेटा करो इसको जरा। शिवम, आप किसका पूछ रहे हो कि यूजलेस है कि नहीं? शिवम, शिवम, जो ये किया था अभी अभी वाले क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन जो थी वो C, D और E वाली, C goes to A, D goes to A and E goes to A। इससे पहला जो क्वेश्चन कराया है ये तीनों यूजलेस थी, तो उनको एलिमिनेट कर दिया था मैंने। क्यों यूजलेस थी? बिकॉज S goes to AB। तो कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो A और B के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो यहाँ पे C आ रहा है, ना D आ रहा है, ना E आ रहा है। इसलिए ये तीनों प्रोडक्शन जो थी वो यूजलेस थी। समझ आ गया? ये कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है जो लिखा हुआ बोर्ड पे? तो इसका स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई चेनेबल वेरिएबल्स। तो W of S is equal to
एस किसके साथ चेन बना रहा है? ए के साथ। ए ए के साथ, किसके साथ बना रहा है? बी के साथ। बी के बी साथ, भी किसके साथ बना रहा है? एस के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस कोमा ए कोमा बी। समझ आ गया? यहाँ तो कोई सर डाउट रिपीट, पूछिए। एक नेक्स्ट बार फिर डब्ल्यू ऑफ ए और बी, ठीक है, डब्ल्यू ऑफ बी। तो डब्ल्यू ऑफ बी के अंदर भी क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ऑफ बी, बी क्या है? एस, ठीक है, मीन इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? एस ए और बी। समझ आ गया? सर ए के साथ ए बी और एस नहीं आएगा? ए के साथ आएगा, ए चेन बना रहा है बी के साथ, बी, हाँ तीनों बी के बना अंदर रहा है तीनों एस के तीनों आ जाएंगे। शाबाश। साथ। हाँ जी सर। एस कोमा ए कोमा बी, ठीक है, तो तीनों जो है वो तीनों के साथ चेन बना रहे हैं। क्लियर है? यहाँ नो का कोई सर, डाउट तो नहीं है? एक बार फिर रिपीट करें। यहाँ पे एस जो है वो ए के साथ चेन बना रहा है, ए बी के साथ बना रहा है और बी एस के साथ बना रहा है, तो इसलिए क्या आ गया? एस ए बी। आफ्टर दैट ए जो है ए बना रहा है बी के साथ, बी बना रहा है एस के साथ, अल्टीमेटली एस फिर वापस किसके साथ बना रहा है? ए के साथ। ए तो के हर एक साथ। वेरिएबल एक एक बार तीनों के अंदर आ जाएगा। क्लियर यस है? सर, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? राइट दोज प्रोडक्शन हुज आंसर इज सिंगल। तो इस प्रोडक्शन के अंदर सिंगल आंसर किसी का नहीं है, नो सर। ठीक है, तो वो वाली प्रोडक्शन नहीं आएगी। उसके बाद वो वाली प्रोडक्शंस लिखनी है जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर क्या आ रहा होगा? सिंगल प्रोडक्शन था स्मॉल बी स्मॉल ए, टर्मिनल। टर्मिनल वाली। टर्मिनल, तो यहाँ पे टर्मिनल। आएगा एस गोज टू बी बी एक, ए गोज टू बी दो, बी गोज टू, ये तीन प्रोडक्शन ए, होगी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद पुट करना शुरू करते हैं एक एक करके। तो बी गोज टू, यहाँ पे क्या है? एस है, एस सर, एस, ठीक है, एस की वैल्यू क्या थी? बी बी, बी बी। सो यह क्या बन गया? बी गोज टू बी बी। समझ आया? सर फिर स्मॉल ए नाल आएगा? स्मॉल ए, हाँ बिल्कुल आएगा, वो भी लिखेंगे, वो तो एक तो लिखा ही हुआ ना अभी, पहले इसको कंप्लीट होने को, फिर वो कंप्लीट एंटायर प्रोडक्शंस लिखते हैं। हाँ जी सर। हर एक प्रोडक्शन एक दफा ही लिखनी है आपको, ठीक है। जी सर। अब बी जो है किसके साथ चेन बना रहा था? एस के साथ। एस की वैल्यू क्या थी? बी बी, बी वो आ बी, गया, ठीक है। अब ये और किसके साथ चेन बना रहा था? ए, एस ए के साथ भी तो चेन बना रहा था ना। ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल बी, तो स्मॉल बी भी इसके साथ आ गया, ठीक है, और स्मॉल ए भी आ गया। तो बी की अल्टीमेटली कितनी प्रोडक्शन आ गई? बी गोज टू बी बी, दिस इज फॉर एस, ये वाला, एंड दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर ए, एंड दिस इज फॉर बी। समझ आ गया? बेटा समझ आया कि नहीं? क्योंकि बी जो है वो तीनों के साथ चेन बना रहा है ना, एस के साथ, ए के साथ और बी के साथ। तो बी गोज टू क्या हो जाएगा? बी गोज टू एस, एस की वैल्यू क्या थी? बी बी, बी और किसके साथ चेन बना रहा था? एस, एस चेन बना रहा था ए के साथ, और ए की वैल्यू क्या थी? स्मॉल बी, स्मॉल बी, बी किसके साथ चेन बना रहा था? इसके ए के साथ, तो साथ। इसकी वैल्यू क्या है? ए, तो ये तीन वैल्यूज आ गई ना। सिमिलरली ए हाँ की जी भी सर, हाँ तीन जी। वैल्यूज और एस की भी तीन वैल्यूज। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये टोटल 9 प्रोडक्शंस आ गई आपकी, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स तीनों के साथ चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? 9 प्रोडक्शंस आर देयर, ठीक है। सो विद दिस सर योर स्टेप सेकंड सिंपलीफिकेशन। सर हाँ दोबारा जी बोलिए बेटा। सर रिपीट कर दो एक बार। बेटा सबसे हेलो पहले आपको स्टेप नंबर 1 के अंदर देखा चेनेबल वेरिएबल्स, कौन सा वेरिएबल किसके साथ चेन बना रहा है? S is making chain with A is making chain with B is making chain with S again। तो एक वेरिएबल एक दफा ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। तो S A B आ गया। उसके बाद A की टर्न आई,
ए चेन बना रहा है बी के साथ, बी बना रहा है एस के साथ, तो अगेन ए भी आया, बी भी आया और एस भी आ गया, तो मैंने फिर से लिख दिया एस ए बी। अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसका ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख दो ए कोमा बी कोमा एस, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख दो। बी किसके साथ चेन बना रहा है, बी की चेन सबसे पहले है एस के साथ, बी गोज टू एस, एस की चेन है ए और ए की चेन है बी, ठीक है। अब पहले वाला उल्टा शुरू कर रहे हैं, बी से चेन को तोड़ना शुरू करा, नीचे से शुरू करते हैं हमेशा ब्रेकेज। बी गोज टू एस, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है बी बी, तो यहाँ पे क्या आ गया बी बी। उसके बाद क्या था ए की वैल्यू क्या थी स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद था बी की वैल्यू क्या थी स्मॉल ए। पहले वाली प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये वाली आ गई। उसके बाद ए, कैपिटल ए गोज टू, ये किसके साथ चेन बना रहा है, ये चेन बना रहा है ए के साथ, ए की वैल्यू क्या थी स्मॉल बी। उसके बाद बी की वैल्यू क्या थी स्मॉल ए, एस की वैल्यू क्या थी डबल बी, लास्ट एस का भी सेम हो गया बी 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 और ए। सो दीज आर योर फाइनल प्रोडक्शंस विच आर फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शंस। तो अब देखिए कोई भी चेंज नहीं है, समझ आ गया। तो यहाँ पे बेटा मैं लूंगा 10 मिनट की ब्रेक, ठीक है। 1 बजे दोबारा लेक्चर शुरू करते हैं विद न्यू टॉपिक्स, दैट इज वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला। तो 10 मिनट के बाद शार्प 1 बजे मैं लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। So next concept is normal forms. So we have 3 normal forms with us. The first normal form is KNF. Normal forms. First normal form is KNF. KNF. Second one is CNF. And third one is GNF. Right? So we have 3 category of normal forms. The first normal form is KNF. It stands for Croda normal form. The second normal form is CNF. CNF stands for Chomsky normal form. सर सेकंड क्या था, हाँ जी, सेकंड सर चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अभी आपको फुल फॉर्म्स देता हूँ इसकी, जब करवाऊंगा ना इसकी डिस्क्रिप्शन तब बताता हूँ, सुनते जाओ जरा। चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड वन इज ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दैट इज क्रोडा नॉर्मल फॉर्म। क्रोडा नॉर्मल फॉर्म। तो कोई भी प्रोडक्शन क्रोडा नॉर्मल फॉर्म की प्रोडक्शन की फॉर्म में कब कहलाई जाती है, व्हेन इट इज हैविंग दीज प्रोडक्शंस, कैपिटल ए बी गोज टू सी डी, ए गोज टू बी सी, ए गोज टू कैपिटल बी एंड कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए। So all these 4 productions are the part of KNF. अगर आपके पास इसके अलावा कोई और प्रोडक्शन आएगी तो वो क्रोडा नॉर्मल फॉर्म का पार्ट नहीं कहलाई जाएगी। Any productions out of these 4 वेरिएबल्स में डिफर, ठीक है। वेरिएबल कुछ और हो सकते हैं, बट ये चारों के अलावा कोई और आती है तो वो क्रोडा का पार्ट नहीं है।
Am I clear? क्लियर है बेटा? यस ठीक है, तो आपके वेरिएबल्स जो हैं वो और हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। आपकी जो फर्स्ट प्रोडक्शन है दैट इज ए बी गोज टू सी डी, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद दीज फोर प्रोडक्शंस. नंबर वन इज ए एक्स गोज टू ए वाई. नंबर टू, ए डी goes to b d. Number three, c y goes to c x. Number four, b w goes to c w. आपकी जो फर्स्ट प्रोडक्शन है दैट इज ए बी गोज टू सी डी, इट विल बी रिप्लेस्ड विद दीज फोर रूल्स. अब रूल नंबर 1 जो है इसके अंदर आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट सेम है. सिमिलरली इसके अंदर सी और सी सेम है. तो नंबर 1 एंड नंबर 3 दे आर लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव. लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव मींस कि इसका जो लेफ्ट कंटेक्स्ट है वो सेम है. So that is why this is called left context sensitive. Similarly, from production second and production fourth, D and D is same. Similarly, W and W is same. It means right context sensitive. They are right context sensitive. Number 2 and number 4, right context sensitive. क्लियर है? नो रिपीट. बेटा सबसे पहली बात तो KNF जो है क्रोडा नॉर्मल फॉर्म है, उसके अंदर ये 4 तरह की प्रोडक्शंस आती हैं. इसके अलावा कोई और प्रोडक्शन आएगी तो वो दैट इज नॉट द फॉर्म ऑफ क्रोडा नॉर्मल फॉर्म. फॉर एग्जांपल A गोज टू स्मॉल a कैपिटल B, तो ये किसी का पार्ट नहीं है, तो ये क्रोडा का पार्ट भी नहीं है. कैपिटल A गोज टू A B C, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं. अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोडा नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो हियर capital AB goes to CD, these productions will be replaced with any of these four productions. Here AX goes to AY, इसका left context same है, that is why this is called left context sensitive. Similarly, in case of third production, C और C is same, they are called left context sensitive. जिसकी right वाला variable same है, D और D, W और W, they are right context sensitive. ठीक है, तो this is the definition for Kuroda normal form. सर ये आपने लिखे क्यों है AX AY AD, ये लिखे क्यों है आपने? लिखे क्यों है? हाँ जी बेटा ये मैंने आपको बताया है कि ये जो पहले वाली प्रोडक्शन है उसके जगह पे AB की जगह पे AX भी हो सकता है. सिमिलरली CD की जगह पे AY भी हो सकता है. ओके ओके सर ठीक है, ये वाली और ये वाली का लेफ्ट वेरिएबल सेम है ना, यहाँ पे A और A सेम है, यहाँ पे C और C सेम है. इसका मतलब होता है दे आर लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव, जिनका लेफ्ट कंटेक्स्ट सेम है. यस सर. ठीक है, दे आर कॉल्ड लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव, नंबर 1 एंड नंबर 3. सिमिलरली नंबर सेकंड एंड नंबर 4 दे आर right context sensitive because their right context is same. समझ आ गया? यस सर. नेक्स्ट है सेकंड, दैट इज चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म. CNF. चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, सो इस केस के अंदर जो प्रोडक्शंस है वो होती हैं, you have on left hand side you have single variable and on right hand side you have only 2 variables or you have single terminal. बस ये दो फॉर्म्स की
प्रोडक्शंस के अंदर एक्सेप्टेबल है, बाकी कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ये गलत है। कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए, ये भी गलत है, ये सारी गलत है, ठीक है। मींस लेफ्ट पे भी एक, राइट पे भी एक, और राइट पे दो, लेफ्ट पे एक वेरिएबल, राइट पे सिंगल टर्मिनल, ये बाकी सारी की सारी इनवैलिड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जो पेपर में आती है मोस्टली, एलिमिनेट, और यू कैन से दैट, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म if and only if they are having these productions. Okay, any production is in Chomsky normal form if and only if they are having these productions. वो productions कौन कौन सी हैं? A goes to BC, A goes to A, ठीक है। So first question है, write down, find the grammar in Chomsky normal form equivalent to the grammar S goes to small a, capital A, small b, capital B. A goes to small a, capital A slash small a, and B goes to small b, capital B slash B. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा। हेलो, हाँ जी, ठीक है बेटा, हमें करना क्या है, ये वाली जो गिवन ग्रामर है इसको सर ए हमने, है ਜਾਂ C ਆ? हाँ जी, सर A ਜਾਂ C ਆ? A is equal to capital A goes to small a, capital A slash small a, ओके ठीक है। अब इसको हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, ये आपकी CNF की फॉर्म है, इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल कितनी प्रोडक्शंस गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, काउंट बताएगा कोई? 5। वेरी गुड, सो 5 प्रोडक्शंस आर गिवन टू यू, ठीक है। तो इसका बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, चेक फॉर यूनिट प्रोडक्शन। स्टेप नंबर 1 का पार्ट ए है चेक फॉर नल प्रोडक्शन। इसके अंदर कोई नल प्रोडक्शन है, दिख रही है आपको? नहीं है, देयरफॉर नो नीड, ठीक है। स्टेप 1 का पार्ट ए क्या कहता है कि इसके अंदर अगर तो कोई नल प्रोडक्शन होगी तो आपको उसको एलिमिनेट करना है, अगर नहीं है तो उस स्टेप की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 का पार्ट बी, चेक फॉर यूनिट प्रोडक्शन, चेक फॉर यूनिट प्रोडक्शन। अगेन यहाँ पे कोई चेन दिख रही है आपको? बेटा रिप्लाई कीजिए, कोई चेन दिख रही है आपको? नो सर। देयरफॉर नो नीड। अगर तो आपके पास कोई यूनिट प्रोडक्शन होती या कोई नल प्रोडक्शन होती तो हमने उसको क्या करना था, एलिमिनेट करना था। लेकिन अब मेरे पास ना तो यूनिट प्रोडक्शन है ना तो चेनेबल वेरिएबल है, तो इन दोनों स्टेप की जरूरत नहीं है। आपका स्टेप 1 खत्म है यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। आगे चलें। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, इसका हेडिंग है एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड। क्या करना है हमको, टर्मिनल्स की एलिमिनेशन करनी है जो कि राइट हैंड साइड पे है, क्योंकि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है इस फॉर्म में। सो स्टेप 2, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स
ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाली अपनी प्रोडक्शन लिखेंगे जो रिक्वायर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। तो कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए, कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए, ये रिक्वायर्ड में है, इसको नंबर दे दो नंबर 1। ठीक है, यहाँ दूसरा नंबर दे दो, इसको नंबर 1 दे दिया, ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म में है। कैपिटल बी गोज टू स्मॉल बी, ये भी रिक्वायर्ड फॉर्म में है, नंबर 2। तो ये दो ऑलरेडी प्रोडक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड फॉर्म में थी। रिक्वायर्ड फॉर्म क्या थी? ए गोज टू स्मॉल ए। ठीक है, तो वेरिएबल डिफर कर सकते हैं, ए गोज टू स्मॉल ए, बी गोज टू स्मॉल बी, तो ये दो रिक्वायर्ड में है। अब हमने क्या करना है? एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड। हमने क्या करा? सपोज ये वाला ए और ये वाला बी को सपोज करना है। सपोज x गोज टू ए, तो ये भी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई। नंबर 3 y गोज टू बी, नंबर 4। ये वाले वेरिएबल्स को सपोज कर लिया, a को पुट कर दिया x के बराबर, ये वाले स्मॉल b को पुट कर दिया b के बराबर। ठीक है, तो अब आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शंस क्या बन जाएंगी? कैपिटल A गोज टू एक्स ए, ये वाले a की जगह पे x पुट करा, तो ये भी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई है। a गोज टू एक्स ए मीन्स के दो वेरिएबल्स चाहिए थे, ये आ गया आपका नंबर 5। b गोज टू y कैपिटल B, ये आ गया नंबर 6। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये 5th नंबर, हाँ जी, 5th नंबर सर रिपीट। कौन सा नंबर रिपीट करूं? 5th सर, 11 ये 5th। बेटा 6 नंबर के अंदर क्या करा है? ये वाले b की जगह पे मैंने क्या सपोज करा था? वाई। y। तो यहाँ पे क्या आ गया? जब b की वैल्यू को पुट कर दिया y b आ गया ना, तो वो भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्म बन गया, क्योंकि राइट साइड पे मेरे को क्या चाहिए था? दो वेरिएबल्स चाहिए, तो दो वेरिएबल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स आए। मैं सिर्फ 1 2 3 किसके ऊपर डाल रहा हूँ? जो मेरी इस फॉर्म के अंदर आते चले जा रहे हैं, जो रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आते चले जा रहे हैं, उसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। उसके बाद जब इसके अंदर पुट करा s वाली के अंदर, s गोज टू एक्स ए वाई बी, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को कितने चाहिए थे? मैक्सिमम दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? मोर देन 2। यस ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस विल बी टेकन टू स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वो वाली प्रोडक्शन स्टेप नंबर 3 के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट सर। क्लियर है सबको? यस चलिए, अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है? उसके अंदर होता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड। क्या करना है? रिस्ट्रिक्शन लगानी है आपको किसके ऊपर? रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा? देखिए, यूजिंग जो आपकी रिक्वायर्ड में नहीं आई थी, वो कौन सी प्रोडक्शन थी? सिर्फ s गोज टू x a y b, पहले वेरिएबल को छोड़ के बाकी तीनों को किसी और के बराबर पुट कर दो। ठीक है, क्या करना है? पुट, एंड ये भी ध्यान में रखना है कि वो वाला वेरिएबल यूज नहीं हुआ ना चाहिए। मैं क्या करने जा रहा हूं? पुट p गोज टू a y b वेयर s गोज टू x p। समझ आया? और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? s गोज टू एक्स पी वेयर p गोज टू a y b। क्या करना है आपको? पहले वाले वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको पुट कर दिया किसी और वेरिएबल के बराबर। तो अब ये भी आपका रिक्वायर्ड में आ गया है, इसको नंबर दे दिया नेक्स्ट। नंबर वहां तक कितने थे? नंबर 6। 6, इसको दे दिया आपने नेक्स्ट नंबर, नंबर 7।
क्लियर है, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड में है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड में नहीं है। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा P goes to AQ, पहले को छोड़ के बाकी दोनों को पुट कर दिया, where Q goes to YB। अब ये भी रिक्वायर्ड में आ गया, इसको नंबर दे दिया 8। ये भी रिक्वायर्ड के अंदर आ गया, इसको नंबर दे दिया 9। अब मेरे को बताइए कोई ऐसी प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड में नहीं है। So now we are having a total number of 9 productions which are in required form. That is, which are in either your left side will consist of 2 variables, or your left hand side will have only single terminal. ठीक है, तो आपके पास टोटल कितनी प्रोडक्शंस आई हैं? 6 स्टेप नंबर 2 तक थी, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। तो ये टोटल 9 प्रोडक्शंस आ गई हैं जो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म का पार्ट है। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये पेपर में ऑलमोस्ट ये भी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म प्रोडक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज कंपेयर टू क्वेश्चंस प्रोडक्शन। ठीक है, सर तो जी, ऑलमोस्ट सर मैंने जब आंसर शुरू हो गया करा था, खत्म? हाँ जी, सर जी खत्म हो गया? हाँ ये वाला टॉपिक यहीं तक ही था। इसकी और नहीं एग्जांपल सर, बताता हूँ आपको। सर इसके बी रेस टू, सॉरी सर इसमें एक सर आई नहीं क्वेश्चन कौन सी? जैसे ए रेस टू स्मॉल ए, वो तो कैसे बेटा आएगी वो अब? तो ओरिजिनल थी ना, वो तो ऑलरेडी रिक्वायर्ड में थी, उसको तो मैंने हाँ जी। ऑलरेडी नंबर कर दिया था। आपने सर जी, उसी को हाँ जी। कन्वर्ट करना है जो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके सर। सर अज्यूम ही किया सर स्टेप थर्ड चले। हाँ जी, स्टेप 3 के अंदर क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन जो लगानी है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को खत्म करने के लिए आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा, सपोजिशन ही करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, चलिए इसकी एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। फाइंड अ ग्रामर इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। फाइंड अ ग्रामर इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म इक्विवेलेंट टू द ग्रामर गिवन ऑन द बोर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 2 है। इसके अंदर आपके पास क्या है? S goes to a sign of similarity, S slash square bracket S, a sign of subset S, right square bracket close, small p small q। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, S goes to a similarity sign S slash square left bracket S, सबसेट का साइन S, राइट ब्रैकेट क्लोज स्लैश P स्लैश Q। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है CNF के अंदर, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है आपको इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? करें स्टार्ट। यस सर। तो स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है? यू विल हैव टू चेक फॉर नल एंड यूनिट प्रोडक्शन। चेक फॉर नल एंड यूनिट प्रोडक्शंस। ना तो इसके नल अंदर कोई नल प्रोडक्शन है, ना ही यूनिट प्रोडक्शन है, देयरफॉर नो नीड फॉर दिस स्टेप। अगर नल या यूनिट होती तो आपको उसको एलिमिनेट करना था, जो मैंने प्रोसीजर बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? उसके बाद आया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता था? एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑफ राइट हैंड एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स। अब ऑन मेरे राइट को हैंड बताइए इसके अंदर टर्मिनल्स कितने कितने हैं?
इसके अंदर टर्मिनल्स कितने हैं, कौन बताएगा? तो 2 कौन कौन से? P और Q। एनीवन एल्स? ये किसने बोला है? सतनवीर। ओके, हाँ जी जोबन आप? और 3 3। हाँ जी पूनम है, पूनम? साक्षी? शिवम? सर 2 P and Q। उसके बाद आकाश? सर 2 P and Q। नहीं बेटा, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी टर्मिनल्स की, तो तब मैंने आपको बताया था कि ऑल द स्पेशल सिंबल्स फ्रॉम योर कीबोर्ड दे आर लिस्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्मिनल्स। तो यहाँ पे ये भी आपका टर्मिनल है, ये भी 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 टर्मिनल है। 1 2 3 4 5 और 6। So we have 6 terminals over here. आपको ये 6 के 6 रिमूव करने हैं, समझ आ गया? आपके ओके सर। जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड के, वो सारे के सारे टर्मिनल्स का पार्ट हैं। तो सबसे पहले वो वाली प्रोडक्शंस लिखोगे जो CNF का ओरिजिनल का पार्ट ऑलरेडी है। तो S goes to small p, it is already in required form, इसको दे दिया नंबर 1। S goes to Q, so again नंबर 2, ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर है, तो इसको हमने नंबर दे दिया 1 एंड नंबर दे दिया 2। समझ आ गया? यहां तो कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। नो सर। बेटा एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो हम सपोज करते हैं ना टर्मिनल की जगह पे एक वेरिएबल, वहां पे आपने वो वाला वेरिएबल सपोज करना है जो यूज नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे S यूज हुआ है तो मैं S सपोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सभी टर्मिनल्स को पुट करूंगा। तो मैंने पुट करा, पुट कैपिटल P गोज टू अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी, तो ये आ गया नंबर 3। पुट कैपिटल Q गोज टू लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर 4। पुट अ साइन ऑफ सबसेट गोज टू सीरियल ऑर्डर, ध्यान में रखना है, PQR, R goes to a sign of subset number 5, ठीक है? उसके बाद पुट करा PQR, S यूज हुआ है, T ले लो, T goes to राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी आपका नंबर हो गया 6, ठीक है? 1 2 3 और 4, चारों को मैंने पुट कर दिया। PQR, S यूज हुआ था, T ले लिया, ठीक है? यहां तो कोई डाउट है तो पूछिए। तो जब ये वाली वैल्यू मैंने पुट करी एक एक करके इधर, तो क्या आया? सबसे पहले आया S गोज टू PS, तो ये हो गया आपका नंबर 7, ठीक है? क्योंकि सिमिलर वाला साइन है, ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया ना। राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे को 2 वेरिएबल्स चाहिए थे, तो मेरे पास आया P और S, तो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। शाबाश। आफ्टर दैट S goes to लेफ्ट parenthesis, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे क्या है? QS, RST। तो ये आपकी ऐसी प्रोडक्शन है जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इट विल बी टेकन टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? तो स्टेप 2 के बाद हमारे पास टोटल कितनी प्रोडक्शंस आई हैं? 7। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3। क्लियर है बेटा? सर अगर एक से हाँ एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो फिर हमने आगे जाना स्टेप 3 पे। हाँ हाँ, एक से नहीं बेटा, 2 से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास 2 की रिस्ट्रिक्शन है ना। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है?
A goes to BC, राइट हैंड साइड पे मेरे को मैक्सिमम 2 ही चाहिए, एक भी नहीं, मैक्सिमम 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए स्टेप 3 की जरूरत है। यस सर। ठीक है सर सर, इसमें दो step- दो ऐसा आगे, हाँ जी, सर 2 ऐसा आगे इसमें क्यों फिर ऐसा क्या हुआ, आगे? 2 एस आ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। चलिए स्टेप 3 करने जाते हैं। यहां तक काउंट याद रखना, 7 काउंट आया हमारे पास। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या था? रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड। स्टेप 3, तो यूजिंग S goes to Q S R S T, क्या करते हैं? पहले वाले को छोड़ के बाकियों की जगह पे एक नया वेरिएबल पुट करना है। तो मैंने क्या करने जा रहा हूं, पुट S goes to Q X where, नीचे लिखता हूं, where X goes to S R S T। तो ये भी रिक्वायर्ड में आ गया, इसको दे दिया नंबर 8। क्लियर है बेटा? पहले वाले वेरिएबल को छोड़ के बाकियों के बराबर पुट कर दिया x। सो पुट s गोज टू q x वेयर x गोज टू s r s t। ठीक है, उसके बाद फिर पुट करा, पुट x गोज टू s y वेयर y गोज टू r s t। ये भी रिक्वायर्ड में आ गया, इसको दे दिया नंबर 9। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पुट y गोज टू x y z ले लेते हैं, पुट y गोज टू r z वेयर z गोज टू s t। तो ये सारी प्रोडक्शन नंबर 10 नंबर 11 लीजिए, ये सारी की सारी जिनको मैंने नंबर करा हुआ है, ये सारी आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म में है। समझ आ गया? यस सर। पहले वाले वेरिएबल को छोड़ के रिमेनिंग वेरिएबल्स को आपको पुट करना है किसी नए वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? यस और नो? यस एक एग्जांपल दूं, करके दिखाओगे मेरे को? सर। ठीक है बेटा, तो आपका पोल का क्वेश्चन आपको देने लगा हूं। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर टू, रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो ग्रामर क्या है, s गोज टू 1a 0b, a गोज टू 1AA स्लैश 0s स्लैश 0, b गोज टू 0bb स्लैश 1s स्लैश 1। ठीक है, इसको रिड्यूस करो और मेरे को काउंट बताओ। ये पोल का क्वेश्चन है आपका, मैं पोल रिफ्लेक्ट कर रहा हूं आपको। ठीक है, अपने काउंट बताना है कि कितनी काउंट आएगा आपकी प्रोडक्शंस का। सर ये 0 है या ओ 0 है ना? 0 0 बेटा, 0।
लीजिए बेटा, ये शो हो गया आपको। पोल शो हो गई है। नो सर। पौने एक तक है। हाले तक तो नहीं हुई। लीजिए अब हो गई शो। हाँ तो नो सर। सर नहीं हुई। बेटा फटाफट आंसर करो इसको। सर हो ही नहीं हाले तक शो। हाँ जी, सर नहीं हुई पोल शो। शो हो चुकी है मेरी तरफ से। पता नहीं सर। हाँ सर देखो होना ही जो होना ही। अगले लेक्चर का याद ही भूल गया मैनू भी, अगला लेक्चर फिर गए थे। कीता ना सर तुम सैट मीटिंग अरेंज की हुई है ना, करनी है। बस 2 मिनट कर लगा फ्री। बेटा हरी अप, आंसर क्विकली। ऐदी खिंचो, हाँ उत्थे जाके आपे कर लिया। So last 10 seconds, hurry up. So thank you students. इसका जो आंसर है वो राइट आंसर इज 12। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट लैब में, नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। और इसका जो एक टॉपिक पेंडिंग है जीएनएफ, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज डन फॉर टुडे। थैंक यू।